3 میں کوئی خاتون ہوں تو سوال کر سکتی ہیں. مائک نمبر 3 پہ. Assalamu alaikum. My name is Anne. I'm a student. I've done my PhD. The thing is that I have two questions to clarify. One is Jesus in Bible is the Son of God. It is stated in an incident that the Holy Spirit came upon Jesus and he said, God himself said, that this is my beloved Son in whom I am well pleased. So who is Jesus? What is the fact about Jesus? Mr. Anne, Yeah. Anne نے سوال پوچھا ہے کہ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے سن آف گاڈ، خدا کا بیٹا، اور ایک کوٹیشن ہے کہ اللہ نے اپنے بلاوڈ سن کے بارے میں کہا ہے. اگر آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل کے اندر گاڈ ہیز گاٹ سنس بائی دا ٹنگس، مطلب بائبل کے اندر آپ پڑھیں گے تو خدا نے کئی انسانوں کو اپنا بیٹا کہا ہے. یہ لفظ جو سن ہے یا بیٹا ہے، کئی بار پیار سے کئی لوگ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کئی ضعیف انسان اگر کوئی چھوٹے بچوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے مائی سن، بیٹا ادھر آؤ. اس طریقے سے بائبل میں God has got sons by the tongues. بائبل میں خدا نے کئی لوگوں کو، مثال کے طور پہ بائبل میں کہا ہے Adam is the son of God. بائبل میں Abraham is the son of God. Israel is son of God. All those who are led by the Spirit of God, they are sons of God. جو بھی کوئی اللہ کے پیغام پہ چلتا ہے اسے کہتے ہیں اللہ کے بچے یا اللہ کے بیٹے. بائبل میں خدا بیٹا کئی لوگوں کو کہا گیا ہے. مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کو کہا گیا خدا کا بیٹا، ابراہیم کو کہا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا. جو بھی کوئی اللہ کے احکامات کو مانتا ہے بائبل کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بچے. اور یہ عام الفاظ میں کسی طرح سیکشن بھی ہے، کوٹیشن جو مشنری لوگ کہتے ہیں. چیپٹر نمبر 3 وقت مسولہ میں جہاں لکھا ہے For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever will with him shall not die but have everlasting life. God so loved the world. خدا نے دنیا کو اتنا چاہا کہ اس میں اپنا جنا ہوا بیٹا ہے. God so loved the world that he gave his only begotten son. اس نے اپنا ایک لوتا جنا ہوا بیٹا، جو بھی اس بیٹے میں مانتا ہے وہ کبھی نہیں مرے گا and وہ جنت میں جائے گا. For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believes in him shall not die but have everlasting life. وہ مرے گا نہیں لیکن ہمیشہ کامیاب رہے گا، مطلب وہ جنت میں جائے گا. یہ جو بائبل کا ورس ہے Gospel of John chapter number 3 verse number 16، جو ورڈ begotten ہے یہ scholars of Bible کہتے ہیں it is interpolation, it's a concoction, it's a fabrication. یہ ایک ملاوٹ ہے. یہ اوریجنل ٹیکسٹ میں یہ لفظ جو جنا ہوا ہے ہی نہیں، اوریجنل ٹیکسٹ میں تھا بیٹا. جنا ہوا لفظ جو ہے یہ انٹرپولیشن ہے، اور اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ اوریجنل ٹیکسٹ میں نہیں ہے. تو اگر کہنا کیا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں in the right sense، کانٹیکسٹ میں بیٹے مطلب اللہ کا کہنا مانتے تھے. ہم مانتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو خدا کے تھے وہ اللہ کے قریب تھے. تو اس انداز میں اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے بیٹے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے جنے ہوئے بیٹے تو ہمیں اعتراض ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹا نہیں جنتا. کیونکہ یہ جو جننے جو قوت ہے یہ قوت ہے لوور اینیمل سبحانہ و تعالیٰ اس کی کئی اوپر ہے. جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4،
अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी की जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। तो ये चार लाइन है, चार स्टेटमेंट है जो कुरान मजीद में खुदा को डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है, अल्लाह सुभान को डिस्क्राइब करने के कारण। और ये चीज बाइबल में भी है। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके मानने वालों को फर्ज है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में मानना है। कोई भी मुस्लिम हो ही नहीं सकता जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं माना। हम ईमान लाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम भेजे हुए अजीम पैगंबर। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक मुजज़ा के जरिए पैदा हुए, बिना कोई बाप के। मॉडर्न आज के क्रिश्चियन नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम से मसीहा, जिसे ट्रांसलेट हो जाता है क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने जो लोग कोढ़ से बीमार थे उनका इलाज किया अल्लाह की मदद से। हम मुसलमान और क्रिश्चियन एक साथ जा रहे हैं। लेकिन कोई अगर पूछेगा फर्क क्या है? फर्क ये है कि अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के जने हुए बेटे हैं। और अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक भी स्टेटमेंट, एक भी जुमला नहीं मिलेगा जिसमें साफ तौर से, बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, साफ तौर पे लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी बात करो। अगर कोई भी शख्स पूरे बाइबल में से कहीं से भी एक भी जुमला मुझे दिखाए साफ तौर पे, बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो, मैं आज ईसाई मजहब को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मैं बाकी मुसलमानों के बिहाफ पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ कंपैरेटिव रिलीजन का, बाकी अक्सर मुस्लिम नहीं है। मैं अपने सिर को गिलोटिन पे डालने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने गले को फांसी के फंदे में डालने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई भी शख्स एक भी जुमला बता सके पूरे बाइबल में बिना शक, बिना शुबा, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूँ। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है साफ तौर पे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में कि मेरे वाले मुझसे बड़े हैं, यानी मेरे खुदा मुझसे बड़े हैं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 में, माय फादर ग्रेटर देन ऑल, मेरे वाले, मेरे खुदा सबसे बड़े हैं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 में, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूँ अल्लाह की मदद से। लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20 में, आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल्स, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, आई कैन ऑफ माय ओन सेल्फ डू नथिंग, as I hear I judge and my judgment is just, for I seek not my will but the will of my father। सलाम ने कहा है I can of my own self do nothing, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। as I hear I judge, जिस तरीके से मैं सुनता हूँ उस तरीके से फैसला करता हूँ, and my judgment is just, और मेरा फैसला हक का है। for I seek not my will but the will of my father, क्योंकि मैं अपने आप कुछ नहीं कहता हूँ, जो कुछ मेरे खुदा ने कहा है, जो कुछ मेरे खुदा चाहते हैं वो मैं कहता हूँ। अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि खुदा के ख्वाहिश के हिसाब से मैं मेरी जिंदगी बसर करता हूँ, वो इंसान मुस्लिम है। ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा कभी भी नहीं किया। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24 में, द वर्ड दैट यू हियर आर नॉट माइन बट माय फादर्स वर्ड सेंट मी, जो आप अल्फाज मेरे सुन रहे हैं वो मेरे खुद के नहीं है लेकिन खुदा के जिसने मुझे भेजा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, दिस लाइफ इज इटर्नल सो दैट यू मे नो द ओनली ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट whom thou hast sent। ये जिंदगी अमन की है, ये जिंदगी हमेशा के लिए, और आप जान लो कि खुदा एक है और ईश्वर ने, खुदा ने इस ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा है। और साफ तौर पे लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, Ye men of Israel, listen to this, Jesus of Nazareth,
a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by many who witnessed to it. This book of Acts में chapter number 2 verse number 22 में लिखा है that ye men of Israel listen to this. ये यहूदी लोग, ये इस्राएल के लोगों, इस बात को सुनो. Jesus of Nazareth, a man approved of God. ईसा अलैहिस्सलाम जो नसारा के थे, एक आदमी थे जिसे खुदा ने चुना. Amongst you, आपके बीच, with wonders and miracles and signs, और उनके जरिए निशानी दिखाए, मौजूदा दिखाए, which God did by him, जिसे अल्लाह ने किया, and you witnessed to it, और आपने उसकी शहादत दी. इससे साफ जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान थे जिन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने चुना, मतलब वो पैगंबर थे, और जितने भी मौजूदा उन्होंने किए वो अल्लाह ने किए उनके जरिए. तो इससे ये जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे, ना कि खुदा थे. Planning to take an English proficiency test to study abroad? Join millions of students across the world who have तो आप मानते हैं इस बात में कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे? Actually, I believe in Islam. That is the fact I'm here. माशाअल्लाह. तो आप मानते हैं इस्लाम मजहब में? Yes, but then I have to explain it to others. तो आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है? He's a prophet. माशाअल्लाह. बहन मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है और खुदा नहीं? और कोई जवाब चाहते हैं इस तरीके से वो दूसरों को ये बता सके कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, अल्लाह के बेटे नहीं, लेकिन पैगंबर है. तो आप कन्विंस्ड है अभी? Yes, आप मानते हैं कि खुदा एक है? yes, आप मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम उसके पैगंबर है? yes. आप ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, जो गॉस्पेल ऑफ जॉन में कहा गया है चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 से 14, और वो आखिरी पैगंबर जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मानते हैं उसमें? और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? तो अगर आप मानते हैं कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, इसका मतलब आप मुस्लिम है. Yes, but I haven't told my parents about this. मैंने कहा कि ये चीज कि वो इस्लाम पे मानती है, उन्होंने अपने वालिदैन से नहीं कहा है. वालिदैन को कहना फर्ज नहीं है. अगर कहे तो अच्छी बात है. आपके दिल में अगर ईमान है, if you have faith in your heart, that is sufficient. You need not tell your parents, you need not tell me, you need not tell anyone. If you have faith, it is between you and Allah. आप और आपके ईश्वर, आपके खुदा, आपके अल्लाह के दरमियान है. बोलना फर्ज नहीं है, लेकिन अगर बोले तो हो सकता है कि आपको इस्लाम पे चलना और आसान हो. तो आपके वालिदैन को बोलना फर्ज नहीं है. धीरे धीरे आप आस्ते बोल सकते. जब आपको लगेगा कि अब बोलना सही है, उस वक्त बोलिए. बोलना फर्ज नहीं. Yeah, and one more thing. The thing is that I won't tell my parents about it, but I want to completely be a Muslim. So if I like 20%, I can't give my 20% to it. I need to give my 100%. So that's the reason I have to tell my parents. मैंने सवाल किया है कि मैं चाहती हूँ मेरे वालिदैन से कहूँ, लेकिन अगर नहीं कहूँगी तो 20% तकरीबन दे सकूंगी. इस्लाम पे मुकम्मल नहीं चल सकूंगी. तो मैं चाहती हूँ कि पूरा चले. बहन 100%, कोई मुस्लिम ये नहीं कहता 100% में चलता हूँ, कोई गुनाह नहीं होता है, कोई गलती नहीं करता हूँ. ये तो नामुमकिन है, क्योंकि आप इंसान ही गलतियां करते हैं. लेकिन अगर आपके दिल में ईमान है, सबसे अहम चीज मुसलमान के लिए ईमान है, तौहीद. अगर दिल में ईमान है और तौहीद है, और अगर शिरक आप नहीं करेंगे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, ये 100% होना जरूरी जन्नत में जाने के. इसके बाद आस्ते आस्ते सलाह, इंशाअल्लाह सलाह पढ़ेंगे, फिर आप ज़कात देंगे, रोजा रखें, आस्ते आस्ते. लेकिन सबसे अहम है कि आपको तौहीद पे चलना चाहिए. ये मानना चाहिए कि अल्लाह एक है और उसके साथ आप किसी को शरीक नहीं करना चाहिए. ये करेंगे तो शुरुआत है. इतना शुरुआत में कम से कम होना चाहिए, और धीरे धीरे इंशाअल्लाह जैसे आपको मौका मिलेगा, इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह आप इस्लाम पे चल सकेंगे. लेकिन कम से कम इतना तो आप मान सकते हैं अपने दिल में कि खुदा एक, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है, ईसा अलैहिस्सलाम उसके पैगंबर है. ये ईमान है. और अगर आप अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पूछते, किसी की बात नहीं करते, ये कम से कम जरूरी है. इतना कर सकते तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते. उसके बाद जितने प्रैक्टिसेस है, जितने भी अमाल है, वो धीरे धीरे इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद करेंगे और आपको आसान करेंगे. तब कम से कम इतना तो मानते हैं दिल में कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, और ईसा अलैहिस्सलाम भी पैगंबर. इतना मानते हैं. Yes.
तो इतना मानते तो आप इंशाअल्लाह इस्लाम में दाखिल हो सकते। So I would like to get convert. अच्छा, बहन ने कहा कि वो चाहती है कि वो इस्लाम कबूल करे। आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है, कोई भी दबाव, कोई भी प्रेशर, माली प्रेशर, माशी प्रेशर, फिजिकल प्रेशर, No. आप अपने दिल से कबूल कर रहे हैं, Yes. आपके दिमाग से भी, Yes. आपकी पूरी होशो आवाज से, Yes. और आप मानते खुदा एक है, Yes. आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। माशाअल्लाह, तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप इसको सिखाइए। Brother, there's one more person who would like to take the Shahada. ओके, इंशाल्लाह शी कैन जॉइन। बहन, आपका नाम क्या है? दूसरी बहन का आपका नाम है सुनंदा। बुद्धिस्ट है और आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे कोई दबाव नहीं इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी फिजिकल प्रेशर, नहीं। कोई भी माली प्रेशर? नहीं। क्योंकि Disappear from social media. Do this instead. Be richer than your friends, mastering AI tools. किसी को प्रेशर डाल के इस्लाम कबूल करना गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है, इस देश में भी गलत है। आप अपनी फ्री विल से कबूल करना चाहते हैं, अपने दिल से, अपने दिमाग से, हाँ। होशो आवाज से। इंशाल्लाह मैं अभी में कहूंगा, इंशाल्लाह दोनों बहनें एक साथ इंशाल्लाह शहादत उठा सकते हैं। अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बस मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु उसके बंदे के बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर। माशाल्लाह आप दोनों मुस्लिम हो चुके हैं और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे आपके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी जिंदगी इस दुनिया में दे और इंशाल्लाह आखिरत में भी आपको जन्नत में डाले। और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके खानदान वालों को, आपके फैमिली मेंबर्स को भी हिदायत दे और हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि आप भी इस इस्लाम के अमन के पैगाम को फैलाएं। I have a request. I want everyone here present to pray for me and my family. बहन की इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है कि वो चाहती है कि जितने लोग यहाँ मौजूद है, माशाल्लाह लाखों का मंजर है, उसकी ख्वाहिश है कि आप उसके लिए और उसके खानदान वालों के लिए आप दुआ कीजिए। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहन को जन्नत में डाले और दुआ करते हैं इंशाल्लाह कि आपके खानदान वालों को, आपके फैमिली मेंबर्स को हिदायत दे इंशाल्लाह। Yeah, especially for my family. इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि आपके खानदान वालों, आपके फैमिली मेंबर्स को अल्लाह ताला हिदायत दे। Thank you. जज़ाकल्लाह शुक्र।